So, hello everyone, Assalamu alaikum. This is your host, Muhammad Ali Al Kamal. I'm Secretary STGs at the Burak Association. And as today's our session or series on 17 workshops on the 17 SDGs is coming to an end with our last SDG, that is SDG 17, Partnership for the Goals. And today, our speaker will be none other than Mr. Shah Khan Mangash. He is the founder and the CEO of Skillistan. As we all know, that Skillistan is working for promoting the green skills. Along with this, Skillistan is also working to educate the youth on the SDGs. So, Mr. Shah Khan Mangash, Shah Bhai, I warmly welcome you, and let's begin. Yes, thank you so much, Daniel, and all the participants. We welcome you again. And I'm so happy because this is my favorite goal. Most of my mentees know this, and definitely now you people will also find out why I classify this as my favorite goal. So today, just because I have another meeting at 8, we'll be doing a quick, way to cover all SDG 17. Definitely not, uh, we're not going to be able to cover just like yesterday each target and each indicator because SDG 17 is very heavy. But yes, we will try to learn as much as we can. So let's begin SDG 17. Just to ask all of you, because I know I was observing, right? आप के workshops हो रहे थे, 1, 2, 3, सारे हो रहे थे. Most of the speakers, I know them very well. They are kind of, some of them are my friends, some of them are my mentees, and so on. So as we are at the end of this SDGs learning journey, it's the 17th one. Describe your feelings in 3 words. Write in the chat, or अगर कोई बोलना भी चाहता है तो you can also raise your hand. कैसे लग रहा है? Learning about SDGs. I mean, definitely most of you would have been learning in-depth SDGs maybe for the first time. तो ऐसा कोई जो अपनी feelings बयान कर सके vocally, तो that would be great. And if you can put it in the chat box, even that's acceptable. Could be 3 words. I mean, if I was learning, okay, Bushra is saying learn, earn, and serve. And how can we earn from the SDGs? That's also a good, point, I would say, because people usually think it's all about social work. Yes, it is about social work. It's about a cause, but then you can also earn if you have the knowledge, the right knowledge. Okay, Tayyiba is saying lot of knowledge. Great, Tayyiba. So, I mean, definitely the SDGs, if someone is not introduced to them and they know, मेरी तो, जिंदगी SDGs के around है ना. So I definitely talk to everyone I meet and I try to educate them on SDGs. तो बहुत बार ऐसे होता है कि someone hears from me about the SDGs for the very first time, and you know they definitely then pursue it later. अच्छा सादिया कह रही हैं कि love Mother Earth, so she has developed a more love for Mother Earth after going through SDGs in depth. Okay, Bushra is saying she needs a little help. Please ask. अस्सलाम वालेकुम सर. जी बुशरा. सर बेसिकली कल जो है ना एक कह लें एक इदारे की तरफ से, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक इंटरनेशनल जो है ना एक वर्कशॉप कंडक्ट करानी है. उसमें मैं कह लें खाकसार
एज ए गेस्ट स्पीकर हूँ। सो उसमें जो है ना बात करनी है दरअसल सोल्यूशन पे, गुड गवर्नेंस, सोल्यूशन फॉर गुड गवर्नेंस एंड पीस बिल्डिंग बेसिकली, कल जो हमने पढ़ा है, ठीक है। सो कल अनफॉर्चुनेटली कुछ मौसम की वजह से ना एंड से जो है वो ज्वाइन नहीं हो पाया, लाइक दरमियान में लीव हो गया था और इंटरनेट का इशू था। सो मैं कुछ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ना इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर दें। कुछ पॉइंट्स मैंने काफ़ी सारे बल्कि मैंने सोचे हुए हैं जिनको मैं प्रिपेयर कर लूँगी और जो मुझे अंदाज़ा भी है। काइंडली आप थोड़ा सा इसको और बेहतर ज़रा मेरे नॉलेज को कीजिएगा कि मेनली मुझे किन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि ये एक कह लें इंटरनेशनल लेवल पे है, तो फिर ऑब्वियसली उस हिसाब से बात करनी है। ठीक ठीक, थैंक यू बुशरा। एंड आपका कल का सेशन ही सारा कल इस्तेमाल होगा। सो यस, यू कैन पुट इट अगेन इन द चैट बॉक्स जो आपका एग्जैक्ट टॉपिक है, तो उस पे बात करते हैं। बट यस, लेट्स रीड फ्रॉम अदर्स। Okay, Team Burak is saying intriguing and leaving no one behind. Rehan is saying sustainability development goals. Great. उसने तीन लफ्जों को ही डाल दिया है जिन पे मेनली आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बने हुए हैं। नाइस वे टू पुट इट रेहान। लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। सो वंस अगेन आप लोग को मैंने कल बताया था कि दिस इज माय ओन इन्वेंशन ऑफ काइंड ऑफ organizing the SDGs in a P shape so that you don't ever forget. At least अगर इन वर्कशॉप से आप ये भी सीख लें कि कौन से गोल्स थे, 17 के टाइटल्स क्या थे, that is a great deal because people don't know much about the SDGs, let alone the targets and indicators. But within this P, as I mentioned yesterday too, last two goals बहुत ज़्यादा important हैं. They are also called the overarching goals. कि मतलब अगर ये ना हो तो ये बाकी की कहानी आप भूल जाए, हो ही नहीं सकता. So these are so important. And then the last one is too important. क्योंकि उसमें ही सारे गोल्स हैं अंदर, एज इन के उसके बगैर ये कुछ भी नहीं हो सकता. Partnerships for the goals. So that's the importance of SDG 17 and we are definitely going to cover it. ग्रेट. अच्छा बुशरा, आपका टॉपिक आ गया, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम मिले, राइट. एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन अगर आप लिंक्डइन पे नहीं है. आई गिव यू मोर पर्सनलाइज्ड टिप्स, राइट. Okay, Bushra, just leave a text on LinkedIn for me. Huma is saying develop insights into issues around the world. Great. Because the main purpose of जब मैं SDGs पढ़ाता हूँ, so if I don't know SDG 4 में आपने वो target cover किया था या नहीं. 4.7 is the target, right, that we are talking about from Huma's perspective. कि 4.7 में है ही बेसिकली ये कि global citizenship. There is this word. So basically what's happening when you people are learning the SDGs, you are also becoming global citizens in this process. Education for sustainable development and global citizenship की बात हो रही है. So anyways, let's move forward in the interest of time. Yes, so the full text of SDG 17, हम लोग तो सिर्फ ये देख लेते हैं ना, partnerships for the goals. The full text is strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. I mean, जो बाकी जितने भी 16 goals थे, उनका means of implementation strengthen करना है. जो हम हमेशा, even yesterday we were discussing, right? Laws are there, policies are there, the goals are there. कोई डाटा ही नहीं इकट्ठा हो रहा पाकिस्तान में and so on, right? So implementation gaps हैं. So this is the implementation kind of goal too. And then it also talks about revitalize. Revitalize is a good word to use here
because MDGs were basically the first global development framework जो SDGs से पहले थे. And when they were launching the SDGs, by this they basically meant कि दोबारा से एक बार ताज़ा करें हम लोग अपनी ये partnership for sustainable development. So I just brought two very important and nice quotes that are very relevant to what we are saying and learning. The first one says, I can do things you cannot. You can do things I cannot. And together we can do great things. So this is true for me and you. This is true for everyone. In this room, many of us would be knowing one thing, but not knowing one another thing that someone else would be knowing. And if we partner together, we can do great things, right? And as you navigate through the rest of your life, be open to collaboration. This is my main teaching to my mentees. कि हमेशा be open to collaborations. Other people and other people's ideas are often better than your own. Find a group of people who challenge and inspire you. Spend a lot of time with them and it will change your life. So this is very important to find your tribe, your like-minded people. और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ someone who is your follower. Someone who challenges you is very important because your followers are always going to glorify you. And definitely someone who keeps inspiring you. Be with such kind of people. So again, collaborations are very important. इस पे आगे भी बात होती रहेगी. But now I am putting the ball in your court. Just like yesterday, I asked a lot of questions from you, and all of you participated really well. So I expect the same again. कि अभी तक आपने इतना SDG 17 इन डेप्थ पढ़ा नहीं है, लेकिन पता तो है ना कि पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स. तो are we doing enough in Pakistan for SDG 17? You can write in the chat or raise your hand. Okay, Saida Mehak had answered for the previous one, learning, transformation, and impact. Great. So anyone who would like to talk over here कि नहीं हम पाकिस्तान में बहुत अच्छा कर रहे हैं और यहाँ हद से ज्यादा पार्टनरशिप्स हैं SDGs के लिए, बड़ा काम हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है. Or you can alternatively say that yes, we are not doing enough. Anyone who would like to jump here? मेरे ख्याल में आज yes, Bushra is always ready. Bushra, please. थैंक यू सर. अच्छा सर, इस पे जो है लाइक अगेन मैं कल की तरह ही इस बात को भी कहूँगी कि देखिए इसके अंदर 3 चीज़ें ही हमारे पास अगेन आ जाती हैं. हम कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो चैलेंजेस की वजह से वो काम ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. ठीक है, इसमें अगर कह लें मैं थोड़ी सी 1-2 एग्जांपल्स लाइक कह लें दे दूँ तो उसमें लाइक एक जो हमारे यूएन के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया. पाकिस्तान के लोग भी तो ये कर रहे हैं. तो एक तो ये चीज़ हो गई. इसके अलावा एक SDGs अकेडमी है इस्लामाबाद की, उसमें मैं भी हूँ बेसिकली एज ए एजुकेशनल मेंटोर. ठीक है, तो वो भी काम कर रहे हैं इस पे. वो डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में स्कूल लेवल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और इन चीज़ों पे फोकस करवाने की जो है वो कोशिश करते हैं. राइट, इसके अलावा और भी अगर हम कहें तो पब्लिक पार्टनरशिप्स होती हैं, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं. कुछ कह लें कि हमारी NGOs हैं वो भी इस पे काम कर रही हैं, लेकिन इट्स नॉट इनफ बिकॉज़ कुछ इसमें एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं. हमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करनी है, क्योंकि हमारा जो कह लें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ना, वो लाइक कल की बात इसमें आएगी. हमारे इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग नहीं है. स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होंगे तो कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी. ठीक है, तो 16 SDG इसमें बड़ा ज़्यादा उसका रोल है. जब तक वो नहीं इसमें
कह लें इम्प्लीमेंट होगी तब तक इसका हल नहीं निकल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कह लें हमें पैसे का मसला है, कोई भी चीज़ इनोवेट करने के लिए फाइनेंस का मसला सबसे पहले आ जाता है, तो ये एक इशू है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह लें कि थोड़ा सा पीछे हैं, अभी कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। वो अगर कुछ कर भी रहे हैं तो हमारे चैलेंजेस और हमारे जो अंदर कह लें कि मिस्टेक्स हैं वो सबको जो है ना वो कह लें कि काम ख़राब कर रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। थैंक्स फॉर ऑल द इनपुट्स बुशरा, एंड अमार जाफरी साहब इज एक्चुअली डूइंग अ लॉट। मैं खुद भी, मेरे बहुत अच्छे उनके साथ टर्म्स हैं। बल्कि उस दिन मुझे किसी ने कहा था कि अगर हम एसडीजीज का देखें तो ज्यादातर या अमार जाफरी नजर आते हैं या आप नजर आते हैं। मैंने कहा नहीं, काम और भी बहुत लोग कर रहे हैं। आपकी वाली बात मैं आगे करूंगा, बट अगेन एक तो एसडीजीज को इतना अटेंशन, मीडिया अटेंशन भी नहीं मिल रहा, एंड दूसरा एक मसला है जो आगे जाके मैं उस पर बात करूंगा, वो मेनली ये है कि हमारे लोग जो है ना, या साइकी जो है, वो पार्टनरशिप्स के लिए नहीं बनी हुई, वो कंपटीशन के लिए बनी हुई है बहुत टाइम से। सो दिस इज ऑल्सो वन रीजन के आर पीपल और आर ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट वर्किंग इन पार्टनरशिप. So Anusha is saying, as of 2024, Pakistan is making progress on SDG 17, which focuses on global partnerships but faces challenges such as economic constraints and political instability. Indeed, continuous efforts and evaluations are needed to address these issues and improve outcomes. Definitely, it's continuous improvement. Saira is saying, I think mostly people are doing but keeping it to themselves. They don't want anyone to be part of it. Don't know why. Saira, that is exactly what I was saying. That's the main problem in my view. And recently there was a conference and I spoke. There were a lot of stakeholders, especially of the climate space. तो मैंने उनको मुंह पे सबको बताया कि the elder generation जो हमसे पहले था, उनकी गलती नहीं है। उनको पढ़ाया गया था 70s, 80s, 90s में कि कंपटीशन कंपटीशन, कैपिटलिस्ट मार्केट है, यू हैव टू compete, सो दे हैव अ कंपटीशन मेंटालिटी। अब हमारे जनरेशन में जब से ये बातें आई, राइट, सो वी आर मोर कोलैबोरेटिव, पार्टनरशिप फोकस्ड, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव पावर, राइट। पावर जिनके पास है, दे आर ऑफ अ कंपटीशन माइंडसेट। इवन गवर्नमेंट के इदारे भी आपने देखे होंगे आपस में पार्टनरशिप नहीं करते किसी अच्छे काम के लिए। मतलब CNW वाले रोड बना लेंगे, फिर सुई गैस वाले आके रोड की खुदाई कर देंगे कि हमने अभी पाइपलाइन डालना है। एंड जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ हाउ there is lack of partnership in whichever space we see, right? Sadi is saying UN NGO are working since long for improvement. Collaboration is there, but improvement is needed. Government need to support them. Yes, there are. When I see some good examples, एक तो ये ना कि information भी नहीं होती. So even I was a big critic of everything until even I am now. But जब मेरे पास lack of information थी, until and unless I knew in the development space कौन क्या कर रहा है, अब ज्यादातर पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ कोलैबोरेशंस कर रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़े क्या हो रहा है, छोटा क्या हो रहा है. So there is a lot of work, I would agree, Sadia, but then there is the need for more work as well, and we are going to see kitna more work is needed, right? So just to share some stats again from the 2023 UN report, जो basically 2022 year को cover कर रहा है, and it's saying many developing countries are facing a debt crisis. अब आपको पता है partnership for the goals, इसके अब आगे targets पढ़ेंगे थोड़े से, उसमें एक ये बहुत important target है कि जो debt है poor countries का, including us Pakistanis, that's a very big problem in development. हम कैसे डेवलप करें जब हमने हर साल इन आर प्रायोरिटी जो स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी होती है हमारे डेट पेमेंट्स, जो हमने कर्जे लिए हैं उनके सूद समेत वापसी करनी होती है. सो
again, a debt crisis is there. As of November 2022, debt distressed 37 of the world's poorest countries out of 69 are debt distressed. And basically, they are at very high risk कि any भी time collapse हो सकता है. हर साल अपना कर्जा वापस दें, सूद देने के पैसे भी नहीं होते. Then the share of exports from LDCs in global merchandise trade. So this was also developed as a target कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्ट्स में अच्छे नहीं होंगे, द इकोनॉमिक मॉडल राइट, तो कैसे ये मुल्क तरक्की करेंगे. बट इवन उस पे भी कोई खास काम नहीं हुआ. लेस देन 1% इनका शेयर है ग्लोबल ट्रेड में. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ODA is very important. So ODA is one thing that all of you have to understand. It's called Official Development Assistance. जो वो वाले पैसे हमें हमारे जैसे मुल्कों को मिलते हैं, जैसे USAID आ गया और Australian aid आ गया, ये aid, वो aid and so on. So the official channels of development assistance are basically under ODA. And net ODA reached $206 billion in 2022, up 15.3% from 2021. So basically 206 billion ज़्यादा हो गए थे जो इससे पहले थे, right? Mainly owing to spending on refugees in donor countries and aid to Ukraine. अब ये total तो हम देख रहे हैं, लेकिन total में किधर पैसा गया है? Mainly refugees and the wars that are happening, instead of, I would say, to some sustainable development projects. And net ODA reached 0.3% of GNI, still below the target of 0.7%. Now this is a very very important target जो SDG 17 में है. वो ये है कि the global north जो है, जो rich countries हैं, right, they have to spend up to or more भी कर सकते हैं, लेकिन 0.7 is their minimum bar. 0.7% of their gross national income. अब सिंपली इससे आप ये कर लें कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप एक अमीर मुल्क हैं, तो आपसे हम सिर्फ मांग रहे हैं 0.7 रुपीज, राइट? जस्ट अ सेकेंड. Acha, sorry for the interruption. Actually, it was my son. So 0.7% हम सिर्फ मांग रहे हैं, लेकिन वो कितने दे रहे हैं? 0.37%, which is almost half of what they have pledged. Then 2 in 3 people use the internet. 259 million more male than female users. अब इसमें एक तो एक बंदे के पास इंटरनेट ही नहीं है ना इस टाइम दुनिया में. तो जस्ट आप इमेजिन करें, जब हम कहते हैं लीव नो वन बिहाइंड, तो ये वाला तो इंटरनेट के बगैर तो आजकल जिंदगी बिल्कुल, मतलब जो हम यूजर्स हैं उन लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल है. तो ये जो एक बंदे के पास इंटरनेट नहीं है, मतलब ये तो इधर एक बंदा है ना, मतलब मिलियंस ऑफ लोग, राइट? तो ये क्या तरक्की, ये क्या, कैसे लीव नो वन? दे आर ऑलरेडी लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज ऑफ जस्ट दिस वन थिंग, राइट? And then there is a gender gap too. Women 259 million more, right? Then females जो हैं वो बहुत कम internet access है उनका. Then ODA funding for data. Now this is one important target under SDG 17. कल हमारी इस बात पे डिस्कशन हुई थी कि डाटा क्यों नहीं है पाकिस्तान का, या डाटा ओवरऑल ग्लोबली फॉर द एसडीजीज की कमी है. सो देयर इज अ स्पेसिफिक टारगेट इन एसडीजी 17 इस बात के लिए कि हमने फंडिंग देनी है इनटू स्टैटिस्टिक्स रिसर्च और पूरी दुनिया में एसडीजीज के लिए, कि डाटा हो हमारे पास तभी हम एनालिसिस कर सकते हैं ना. So even that dropped by more than 20% in this time period. So that's why we have
a dearth of data. So in total, there are 19 targets and 25 indicators for SDG 17. It is the heaviest goal to cover, right? And we will try to cover at least the 19 targets if we couldn't cover all the indicators. And basically, अगर इसके 19 targets को आप देखें, do study your own too, because इस workshop में आपको एक सिर्फ spark मिल रहा है. ऐसे बोले ये intro to SDG 17 है, right? So SDG 17 targets are broken down into 5 main categories. कुछ targets इसके finance related है, जैसे हमने वो debt की बात की, right? कुछ targets इसके technology related and the technology transfer and partnerships between global north and south, things like that, right? Then some targets are related to capacity building, such as the one we are doing right now. But here capacity building is also concerned about the government. कि आपको पता है हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में से अभी भी आप जाके कहीं एसडीजीज का पूछें तो very few people would be even knowing about the SDGs, let alone working for them. Then we have trade related targets, जिस तरह के वो LDCs का था. And then we have some targets for systemic issues, such as जो ये ODA की बात हो रही थी and so on, right? Data के की बात हो रही थी, which are considered as systemic issues. Let's move forward. So these are basically the 19 targets and 25 indicators. For 25 indicators, तो छोड़ दें, सिर्फ 19 targets ही आज हम discuss कर लें. That would be a great deal. Just give me 30 seconds, okay? So yes, I hope some of you would have read jaldi jaldi se ke kaun se targets hain, but let's talk about them, okay? And we are going to cover them in a quick manner, but yes, we are going to talk about them. So the first target is 17.1, which says mobilize resources to improve domestic revenue collection. अब अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, because there are many development models, right? But डेवलपमेंट फ्रॉम विदाउट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं मानता नहीं हूँ. मतलब ठीक है, बाहर से हेल्प आ सकती है आपके लिए, एड भी आ सकता है, ओडीए भी फ्लो हो सकता है, बट until and unless you develop from within, you cannot develop from without. And I still remember there was जब मैं डिग्री कर रहा था, my BS is basically in international development. उस टाइम MDGs का जमाना था, 2012, 13, 14, 15, right? But at that time, in our book, Development Management, we had case studies of countries. And उसमें कुछ थे डेवलपमेंट सक्सेस की स्टोरीज, कुछ थी डेवलपमेंट फेलियर की स्टोरीज. And sadly, because it was an international degree, right, there were many other countries, भी जो University of London का program है, right? So when I saw उस बुक में पाकिस्तान was a development failure, तो उधर से ही मेरा दर्द basically development के लिए. And one of the reasons that they said that it's a development failure is because domestic revenue collection उस तरह नहीं है, ठीक नहीं है, effective नहीं है. So if we even not talk about the indicators, right? This target is self-explanatory कि हमें बेसिकली अपनी, जिस तरह हमारा FBR है, राइट? सो हमने अपने ही पैसे अपनी ही मुल्क में जब तक जनरेट नहीं किए, तो हम लोग एवरी ईयर जो ये कर्जे ले रहे होते हैं, वो तो बेसिकली दो बातों के लिए ही ले रहे हैं हम. एक को कहते हैं हम फिस्कल डेफिसिट, जिसकी इधर बात हो रही है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसमें गैप है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो उसके लिए एक कर्जे हो गए.
और एक करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गैप है उसके लिए, उसकी आगे बात आ रही है. सो द सेकंड टारगेट इज 17.2, इम्प्लीमेंट ऑल डेवलपमेंट असिस्टेंस कमिटमेंट्स. ओडीए की जो कमिटमेंट्स हैं ना, जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा कि 0.7% ऑफ देयर ग्रॉस नेशनल इनकम हमें इन लोगों ने, जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज है जिनको ओईसीडी कंट्रीज कहते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने जीएनआई का 0.7% लगाना था पूरी दुनिया के डेवलपमेंट पे, इन्हीं एसडीजीज पे, लेकिन वो नहीं लगा रहे हैं, 0.37% लगा रहे हैं. तो देयरफॉर वी हैव द फाइनेंसिंग गैप फॉर एसडीजी. सो बेसिकली इफ यू कैन सी, दीज आर द फाइनेंस वाले टारगेट्स, जिस तरह हमारी शुरू में बात हुई कि सम ऑफ द टारगेट्स आर फाइनेंस वाले. Then 17.3, mobilize financial resources for developing countries. So in this target, and there are some detailed indicators too, but basically what they are saying is कि हर किस्म की financial resources mobilize होनी चाहिए. जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट वाली हो जो ओडीए में कवर हो गई हैं. So there are other sources of finance as well, such as you can say the foreign direct investment, जो एफडीआई का हम कह रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में अगर कोई मल्टीनेशनल आ जाए and so on, that will help. So FDIs are also very important, and they are also coming from the private side, right, from the business side. Then 17.4 says assist developing countries in attaining debt sustainability. So इस पे हमारी थोड़ी बात भी होनी चाहिए definitely before going forward. But पाकिस्तान का अगर आपने देखा हो, even the previous government when it came, it said कि पिछले हुकूमत ने कर्जे लिए थे और हम तो इस बात के लिए अब कर्जे ले रहे हैं कि ये जो पुराने कर्जे हैं उनका सूद दे सकें. इस तरह अब ये वाली हुकूमत इसी तरह के कर्जे लेगी, फिर अगली हुकूमत आएगी वो इस तरह के कर्जे लेगी. तो आप मुझे बताएं कि इज इट डेट सस्टेनेबिलिटी? अब डेट के बगैर भी काम नहीं चलता. डेट मतलब कर्जा तो मुल्कों को लेना पड़ता है, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, लेकिन मेन बात यह कि बहुत सारे मुल्कों के कर्जे हैं, बहुत सारे मुल्कों के बहुत बड़े बड़े कर्जे हैं, बट दे आर मैनेजिंग देयर डेट्स सस्टेनेबली. बट हमारे केस में एक्चुअली आई हैड अ सब्जेक्ट इन माय एमएस एमफिल जिसमें हमने बेसिकली प्रोजेक्ट किया था इसी पे कि कैसे पाकिस्तान की डेट के बारे में. So there were many out of the box solutions for it too, but I would want to hear from you. I just want to make this one target very interactive. अगर किसी के पास कोई out of the box solution है कि ये पाकिस्तान का कर्जा आखिर कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम तो फिलहाल तो ये सोल्यूशन है हुकूमत के पास कि और मजीद कर्जा लो ताकि पीछे के का कर्जा सिर्फ पूरा तो नहीं दे सकते, सूद देते रहें, राइट. हम हर साल सूद दे रहे हैं. इसमें ऐसे भी हमारे पास कुछ कर्जे हैं जिनका हम कैपिटल से ज्यादा इंटरेस्ट में दे चुके हैं, बट वी आर नॉट रिटर्निंग द कैपिटल. ऐसे भी हमारे साथ हैं कुछ कर्जे जो बहुत पुराने हैं लेकिन उनको हम लेके हुए आ रहे हैं. एक हुकूमत दूसरे पे ट्रांसफर कर रही है, दूसरी तीसरे पे ट्रांसफर कर रही है, एंड सो ऑन. सो एनीवन हु हैज एनी आइडिया अबाउट दिस टॉपिक कि हम ये पाकिस्तान का कर्ज आखिर खत्म कैसे करेंगे? Okay, Nuzna is saying by decreasing defense budget and instead giving the money to pay off loans. ठीक है, आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन चलो हमने डिफेंस बजट थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, 200-300 अरब डिक्रीज कर दिए, तो उस पे काम नहीं होगा. उस पे हाँ थोड़ा सा एक 10% 20% शायद ये जो मसला है ये हल हो जाए, लेकिन ज्यादा काम उस पे नहीं हो सकता. जी सादिया. अस्सलाम वालेकुम. आई वुड लाइक टू ऐड सर कि इसमें जो है ना पॉलिसी की बातें आ जाती हैं. देखा जाए तो लाइक इफ़ वी कंट्रोल
our exports and focus on the things generated in our own country, which should be sustainable and eco-friendly. But if it will be applied from the policy, like things are generated in Pakistan and they are eco-friendly, and we are supposed to buy only those items, then there will be control on the export charges. Uh, sorry, import charges, and it will be controlled. For example, like if we are banning the Israeli items and we are buying cold drinks of Pak Cola and other gourmet items from our own country, it's controlling the import charges. Like we are discouraging those things. And the second thing is we are an extravagant nation, and we are following the show of policy. So we need to think ourselves. If we are correcting ourselves, then things will be smooth, and this can be controlled. Like taking the example of Japan and other countries who have managed from the earthquakes and critical catastrophes. Thank you. थैंक यू। और जापान का इसमें बहुत रेलेवेंट एग्जांपल ये भी है कि उसका बहुत बड़ा डेट है, मतलब अपनी जीडीपी से बहुत बड़ा डेट है, राइट? बट स्टिल दे आर मैनेजिंग इट. सो यस, वी कैन लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल. थैंक यू फॉर दैट इनपुट्स, Sadia. So Saira is saying by responsible consumption and production and by increasing transparency in our system. That's very important, transparency. क्योंकि हमने एक छोटा सा मिनी उसमें ये भी किया था ना एनालिसिस कि जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई, so at that time if you people remember, he was really against going to the IMF. जो हम सबकी फीलिंग है, राइट, कि IMF ने ही तो सारा मसला बनाया है, फिर से IMF के पास. I mean, ठीक है, but at the end of the day, after I guess 6 to 8 months, थोड़ा सा लेट हो गए थे जिसमें असद उमर भी चला गया था and so on. But इस टाइम पीरियड के बाद हमें फिर भी IMF के पास जाना पड़ा, और just because of that gap हमें तकरीबन 600-700 अरब रुपए का एक एनालिसिस हमने की थी, हमें मजीद नुकसान उठाना पड़ा just because of taking that decision late, which eventually we had to take. So we shouldn't be also focusing on such solutions जो actually solutions ना हो और काम खराब कर दें. So think about out of the box solutions. Shireen कह रही हैं कि not a complete solution to the debt problem, but there is an immense potential in our tourism industry. जितना पैसा हम generate कर सकते हैं, we aren't generating. We need to get money out of the pockets of rich white people visiting instead of giving them things for free. So true, Shireen. Yes, I mean, जो अब आ रहे हैं ये तो बहुत कम है, potential बहुत ज़्यादा है tourism industry का. And again, it can help us in the 17.1 domestic revenue generation. And then वो ही इसी के अंदर सारे हल हैं. अच्छा, SDGs के अंदर if we increase revenue through different sources, we can actually manage our debt sustainably. Okay, Maham is saying trading of goods could be done in PKR $2. Increasing tax on luxurious foreign goods will increase the country's local business and reduce imports. Again, अगर आप लोगों में से economics बहुत जिसने पढ़ी हो ना उसको ये समझ आएगी. Economics में ये है ना कि एक जगह पे आप कुछ करें ना तो उसका कहीं और भी असर होता है. So for example, if you increase tax on these things, which is tariffs on imports, तो the other countries also do it in response. और इसी के अंदर आगे आ रहा है जो WTO का हम पार्ट हैं. So we cannot basically do tariffs as well. And trading of goods could be done in PKR. तो PKR पे असल में कोई ट्रस्ट नहीं करता. तो अब भी ये है, हमारे पास डॉलर डिप्लोमेसी खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता. चाइना अपनी करेंसी में हर किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द फ्यूचर. एनीवेज, बुशरा इज सेइंग हम तो उनकी इजाजत के बगैर टैरिफ भी नहीं लगा सकते सर. ऐसे ही है. देयर आर मेनी ग्लोबल गवर्नेंस रूल्स जिनको हमने फॉलो करना है. सो वन ऑफ माय आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, राइट, अगर आप लोगों में से कोई ये कर लें तो दैट वुड बी ग्रेट. सो वो ये था कि हमारे पाकिस्तान में एसेट्स की कोई कमी नहीं है, राइट. वी हैव अ लॉट ऑफ एसेट्स. अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे इसको एक घर समझे आप, पाकिस्तान को इस टाइम एक घर समझे.
हम पे है कर्जा, हम हर साल उसको सूद देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और हमारे पास इसीलिए वर्किंग कैपिटल कम है, क्योंकि हमारे पास जो मेन पैसा है वो तो हम सूद में दे रहे हैं। लेकिन हमारे इस घर में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एसेट्स पड़े हुए हैं जो हमें चाहिए भी नहीं, और वो एम ही पड़े हुए हैं। तो क्यों ना हम वो एसेट्स उठा के बेच दें और अपने घर का कर्जा खत्म करें, और जो हमारे पास एवरी ईयर वाला वर्किंग कैपिटल है उस पे हम घर की मुरम्मत करें, घर अच्छा करें, एंड सो ऑन, राइट? सो द मेन आइडिया, द मेन एसेट दैट वी हैव इज लैंड, प्राइम लैंड, राइट? एंड वी कैन एक्चुअली डू सो मच विद दिस लैंड। मैं अभी आपको सिर्फ कुछ मिसालें देता हूँ। सेंटोरस का जो प्लॉट है इस्लामाबाद में, ये 42 अरब का बिका है, ठीक है? तो ऐसे प्लॉट्स जो है ना, ये पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद में आप देख लें, ब्लू एरिया की रोड पे लेफ्ट राइट और बहुत ज्यादा, मतलब हर मेजर शहर में आपके पास बहुत सारा प्राइम लैंड है। ऐसे भी होगा कि कुछ शायद आर्मी के पास हो, ऐसे भी होगा कुछ शायद डीसी ऑफिस एक महल बना हुआ हो, ऐसे भी होगा कि जो कोई ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट में प्राइम लैंड पकड़ी हुई हो जो पीछे किसी दफ्तर में भी अपना काम कर सकते हैं, उनको उस प्राइम लैंड की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो वी कैन सेल। एंड पाकिस्तानी, आपको पता है, और किसी चीज पे पैसा खर्च करें ना करें, पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है। पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, लेकिन हुकूमत को नहीं पता। सो मेनली अगर हम लोग यही सारी जमीनें अपने ही पाकिस्तान में लोगों को पे बेचे ना, ये सारा पैसा निकाल लेंगे जस्ट फॉर द प्राइम लैंड। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि वो बिका भी है, बट अगेन आई वुड, इट्स अ कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट, जो वॉल्टन एयरपोर्ट लाहौर का पुराना बिका है, बहुत सस्ते में बिका है। बट दीज आर द थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? लेकिन ये ऐसे नहीं करना कि इक्का दुक्का, ये एन मास करना है, एक बार करना है, एक प्लान के साथ करना है कि वी आर गोइंग टू सेंड द स्टेट एसेट्स, सेल लैंड ऑन पाकिस्तानीज, और हमारी जो डायस्पोरा बाहर बैठी है, बाहर के, इवन यू कैन सेल इट ऑन फॉरनर्स। कोई प्लाजा बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है देयर, yes Saira, we start from the beginning. So let's move forward in the interest of time. अच्छा, बहुत सारे targets हैं। So 17.5 is basically saying invest in least developed countries. Now when they're talking about investment, so it's basically global north को और global north की जो money making businesses हैं, they want them to invest in least developed countries such as FDI and so on. 17.6 is very, very important, and this is also one of my major concerns. Knowledge sharing and cooperation for access to science, technology, and innovation. Just like I shared earlier, competition, competition, competition इतना ज़्यादा है in the capitalist system कि knowledge sharing की बातें, and then if you say कि चाइना आपको knowledge दे दे या कोई नो हाउ दे दे, तो वो भी अपनी, मतलब अपनी डिप्लोमेसी के मुताबिक देंगे, राइट? इफ दे आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। बट नॉलेज शेयरिंग एंड कोऑपरेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका इस टाइम है, बहुत सारे इदारे भी बने हुए हैं, यूएन सिस्टम्स आर आल्सो देयर, बट इसका बुरा हाल है। मतलब हर बंदा अपना नॉलेज शेयर नहीं करता because they think that someone else is going to copy it. And actually, China has been doing a lot of such things with the global north too before. अब चाइना अपने टेक्नोलॉजी आ गई उसके पास, तो अब वो it's conscious about intellectual property and so on, but still it's doing a lot of such things. Then 17.7 says promote sustainable technologies to डेवलपिंग कंट्रीज। ऐसी टेक्नोलॉजी से, फॉर एग्जांपल, इसमें ये जो हमारे इंडस्ट्रियल सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज है ना, जो हमें चाहिए, से फॉर एग्जांपल हमारे इंडस्ट्रीज को अगर डिकार्बोनाइज होना है, एंड so one of example that I'm going to share was when I was working in the oil and gas industry, right?
सो उस उधर ये होता है, जब फील्ड पे आपने अगर कहीं ऑयल एंड गैस का फील्ड देखा हो तो एक फ्लेयर जल रहा होता है एनी टाइम, एक टावर में से आग लगी होती है और वो जल रहा होता है फुल टाइम। सो मैंने कहा यार इससे कितने कार्बन एमिशंस होते हैं। आई मीन apart from the fact that we were pulling thousands of barrels of fossil fuel every day, but there was a visible flare in front of me जो हर वक्त जल रहा होता था एंड उससे धुआं निकल रहा होता था एंड आई वाज लाइक इसका कोई हल नहीं होगा। तो देन आई एक्चुअली फाउंड आउट कि इसका एक हल है। इस फ्लेयर के टॉप में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि which actually suppresses this flare, and क्योंकि फ्लेयर की भी जरूरत होती है, वो प्रेशर बनता है ना पाइप्स में एंड सो ऑन, so it can capture it and not so that it doesn't go into the atmosphere directly or थोड़ा सा केमिकल वो करके कन्वर्ट करे into a safe gas and so on. So these kinds of technologies we need that the global north has, but again it's all about cooperation and taking those technologies. Then target 17.8, strengthen the science, technology and innovation capacity for least developed countries. जब हम LDCs की बात करते हैं ना, least developed, उनका बहुत बुरा हाल है साइंस में। I mean the small island states, even Afghanistan is included in LDCs, right? So for them, they definitely need cooperation from the global north and also the global south, such as us. Then target 17.9, enhance SDG capacity in developing countries. So this is what we were talking about earlier too, कि 17.9 हमारे गवर्नमेंट की कैपेसिटी डेवलपमेंट के बारे में बेसिकली, बट ऑल्सो द प्राइवेट पीपल शुड नो, द बिजनेसेस शुड नो एंड सो ऑन। बट हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अगर आप जाएं से एजुकेशन डिपार्टमेंट में और उनसे आप SDG4 का पूछें तो वेरी रेयरली दे वुड नो अबाउट SDG4। और मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट तो SDG4 इस तरह है कि जब तक एजुकेशन ही नहीं होगी अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आगे की बातें तो हो ही नहीं सकती। देन 17.10, जो आप टैरिफ्स की बात कर रही थी ना, वो इधर आ गई है। Promote a universal trading system under the WTO. So the World Trade Organization is also covered in the SDGs, and it says एक यूनिवर्सल ट्रेडिंग सिस्टम हो। सो बेसिकली इन दिस यूनिवर्सल ट्रेडिंग सिस्टम आप टैरिफ्स लागू कर ही नहीं सकते हैं। आपने भी टैरिफ्स खत्म करने हैं, अगलों ने भी टैरिफ्स, एंड इट्स वन ऑफ द की अचीवमेंट्स कंसिडर्ड ऑफ SDGs कि इस टारगेट की वजह से ग्लोबली अब टैरिफ्स ऑलमोस्ट जीरो आ गए हैं। बैन टाइप है इस पे, ठीक है, टैरिफ्स पे। 17.11, इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। एक साइड पे तो हम इंपोर्ट को हमने ठीक है इधर कर दिया है कि आप टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन फिर उसका हल भी तो SDGs ही दे रहे कि एक्सपोर्ट्स इनके इंक्रीज हो। सो देयर आर बेसिकली टू वेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमने पढ़ा है, वो ये है, एक है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियलाइजेशन EPI, एंड सम ऑफ मोस्टली कंट्रीज हैव डेवलप्ड ड्यू टू EPI। अगर आप साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं वो भी EPI से डेवलप हुआ, अगर आप चाइना की बात कर रहे हैं वो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, even Vietnam and Singapore and all these countries were basically poor countries earlier, right? So they developed because of export promotion industrialization. ये उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जो सिर्फ लगती एक मुल्क में इसलिए हैं कि उससे एक्सपोर्ट हो जाए, मतलब हमें वो चीज नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हम एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं कि वो बाहर बिक सके। और दूसरी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसको कहते हैं ISI, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो आप टैरिफ्स ऑफ ऑन इंपोर्ट्स की बात कर रही थी ना, वो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इस मुल्क के अंदर कर सकते हैं
जो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करे। अब फॉर एग्जांपल मैं पढ़ता रहता हूँ ना कि कितने इंपोर्ट्स हैं, कितने एक्सपोर्ट्स हैं, सो ऑन। सो वन ऑफ द हेड्स दैट आई सॉ वाज डॉग फूड। It's one of amongst the biggest imports, right? More than I think 250 to 300 million dollars का पाकिस्तान में डॉग फूड इंपोर्ट होता है। तो आप मुझे बताएं कि एक मुल्क एटम बम बना सकता है, वो डॉग फूड नहीं बना सकता? मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज बन सकती हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर ही उस क्वालिटी का डॉग फूड बनाएं जो हमारे ये लोग खरीदना चाह रहे हैं अपने कुत्तों को खिलाने के लिए। सो दैट इज आई मीन एक अलमिया कि हम ऐसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे जो हमारा ये पैसे बचा सकते हैं। सो अगेन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस समवन, यस बुशरा, आपका हैंड रेज्ड है। सर आपने अभी टैरिफ वाली सारी बात की, मैं सुन रही थी। तो देखें, एक मेरा पॉइंट है वो आप क्लियर कीजिएगा। देखें, यूएन ने हमें एसडीजीज दी, जी इन चीज़ों को फॉलो करके हम लाइक तरक्की की राह पे गामजन हो सकते हैं एट्सेट्रा, ये इनका बेसिकली मोटो है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी का जो पहला पिलर है वो कह लें इकोनॉमी आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमी से ही ये बात उठाएं कि जब वो खुद चाहते हैं कि इकोनॉमी अगर किसी मुल्क की बेहतर हो सकती है तो ऑब्वियसली इससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, पॉवर्टी का इशू ख़त्म हो जाएगा, ये वो एट्सेट्रा। तो फिर इनको लाइक देखें, अगर एक पाकिस्तान की टेबल जो है वो अगर चाइनीज़ बंदा ख़रीद रहा है तो उस पर हम टैरिफ लगा दें और उससे हमारी इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, इसके काफ़ी फ़वाइद भी तो हैं ना। तो फिर लाइक क्यों नहीं इजाज़त मिल सकती? लाइक क्यों हम इतने ही गुलाम हो गए कि हम अपनी इंडस्ट्री की अपनी चीज़ पे वो नहीं लगा सकते? कि हालांकि जब हम उनसे कोई चीज़ खरीदते हैं तो ऑब्वियसली उस पर उसका चाहे टैरिफ का नाम दें या टैक्स का नाम दें, जिस चीज़ का मर्जी दें, हम वो पे करके वो लेते हैं, राइट। मतलब उस पर टैग लगा होता है, जनाब ये इम्पोर्टेड है, और इम्पोर्टेड है तो आपको जिस पे ये इतना टैक्स है या एट्सेट्रा ये चीज़ें होती हैं। तो फिर हमारी चीज़ पे क्यों नहीं लग सकता? ये मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, अच्छा, बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स थोड़ी सी डेप्थ है इसमें, लेकिन इसको कंसिडर करते हैं मार्केट डिस्टॉर्शन। ये जो आप बात कर रही हैं ना कि हम टैरिफ्स लगा दें, हम लगा सकते हैं तो फिर वो भी लगा सकते हैं। और पिछले जमाने में आपको पता है वर्ल्ड वॉर वन से पहले मेनली मसला क्या था? ये टैरिफ्स का मसला था कि मतलब जब इवन लास्ट जब ट्रम्प था, ट्रम्प और चाइना का आपको याद होगा एक टैरिफ वॉर चल पड़ा कि इन्होंने चाइनीज गुड्स पे टैरिफ लगाए, चाइनीज ने उधर यूएस के गुड्स पे टैरिफ लगाए। और ये जो हम टारगेट की बात कर रहे हैं डब्ल्यूटीओ वाला, दिस वाज इन जोपर्डी बेसिकली। बट अगेन इसमें बहुत सारी निटी ग्रिटीज है, इतना आसान काम नहीं है। एंड द मेन कंसेंसस वाज इन फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स कि अगर हम टैरिफ्स, अच्छा वो लोग कैसे स्टिल हिडन टैरिफ्स, काइंड ऑफ नॉट हिडन टैरिफ, बट उन लोगों का क्या होता है कि दिस वो स्टैंडर्ड्स हाई कर देते हैं। से यूरोप में आपने कोई चीज पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करनी है ना, तो उनके स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं। सो वो भी दे आल्सो वर्क काइंड ऑफ टैरिफ्स, मतलब डिस्करेज करते हैं हमारे एक्सपोर्टर को, राइट, क्योंकि कागजी कार्रवाई बढ़ जाती है एंड सो ऑन। But again, the international consensus about tariffs is that they are not good. But other things जो आप कह रही है ना, हमारा मसला और चीजों में वो होता है। मतलब जिस तरह मैंने आपको कहा, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। बाकी जो ये एसडीजीज हैं उसमें जितनी बातें से, अब जो ये डोमेस्टिक रेवेन्यू कलेक्शन की बात है, ये अगर हम कर लें तो हमें बाकी और बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। Let's move forward in the interest of time. So 17.12 is saying remove trade barriers for least developed countries. अब trade barriers एक तो tariffs हो गए, इसके अलावा भी ऐसे trade barriers होते हैं, quota system and so on, वो least developed countries के लिए मुकम्मल खत्म करने का कहा हुआ है। 17.13 कह रहा है enhance global macroeconomic stability. So when we talk about macroeconomics, जैसे inflation, interest rates and the bigger things, right?
सो इसका जो इंडिकेटर है ना वो कहता है कि हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक डैशबोर्ड्स होने चाहिए। लास्ट आई चेक्ड अबाउट पाकिस्तान, अब मुझे नहीं पता अगर पाकिस्तान बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है और ये चीज आ गई है, बट अनटिल नाउ there is no macroeconomics dashboard for Pakistan. There is work going on it, ये मुझे पता है, लेकिन बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक डैशबोर्ड में आपको द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स जो इकोनॉमिक्स के होते हैं ना वो आपको एवरी ईयर और लाइफ टाइम एक डैशबोर्ड पे अवाम को भी दिखाने हैं, हुकूमत ने भी देखने हैं कि वेदर हम ठीक जा रहे हैं और नॉट, along all the important indicators of economics, right? Like inflation, interest rates, and so on. So 17.14 says enhance policy coherence for sustainable development. Now this is also a very major concern कि पॉलिसीज हमारे पास बहुत हैं। अब अगर क्लाइमेट स्पेस की हम सिर्फ बात करें ना तो काफी सारी पॉलिसीज आ गई हैं, बट देन देयर इज ऑल्सो, अब अगर आप देखें क्लाइमेट इज नाउअडेज क्वाइट लिंक्ड टू वाटर। सो अगर कोई वाटर की पॉलिसी होगी तो उसमें भी तो क्लाइमेट का जिक्र होना चाहिए ना, एंड वाइस वर्सा। सेम अगर कोई जेंडर की पॉलिसी आप बना रहे हैं तो फिर उस जेंडर की पॉलिसी में भी तो क्लाइमेट की बात होनी चाहिए, वाटर इश्यूज की बात होनी चाहिए, एंड सो ऑन, राइट? So that is the point that SDG 17.14 wants to say कि मुख्तलिफ policies में coherence नहीं है. In Pakistan, I note this a lot. New and new policies are coming up that are not in sync with the other policies, and after some time even they are not implemented. एक नई policy आ जाती है, and it's just a cycle of policies without implementation. Then 17.15 says respect national leadership to implement policies for the sustainable development goals. अब ये जो आप बात कर रही थी ना कि एक साइड से एसडीजीज हमें कह रहे हैं कि ये करो, सारा डिफाइन किया हुआ है, फ्रेमवर्क दिया हुआ है, हम क्या करें, इसके बाहर तो हम कुछ नहीं कर सकते. बट नो, देयर इज रूम in this target for your national leadership to take any policy चीज जो इन SDGs को implement करने में help करे. Although they have written, इसके अगर आप indicators पढ़ें कि मतलब बहुत ड्रास्टिकली आप नहीं चेंज कर सकते, बट कुछ अपने नेशनल इंटरेस्ट में अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहें जो इन एसडीजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके नेशनल कॉन्टेक्स्ट में, तो आप ले सकते हैं. सो दैट्स बेसिकली 17.15. Then 17.16 says enhance the global partnership for sustainable development. मतलब जो लार्जर गोल की बात है ना वो इधर एक टारगेट में भी आ गई है कि यू नो वी डू द, और इसमें जो डेप्थ है वो है पब्लिक प्राइवेट, प्राइवेट प्राइवेट. I mean, so many partnerships are required for the SDGs. Then 17.17 says encourage effective partnerships. I mean, partnerships बहुत होती है. मैं पाकिस्तान में देखता हूँ ना, धड़ाधड़ MOUs लोग साइन कर रहे होते हैं. But then when I see after some time there is no work, only MOUs signing or just for the sake of pictures. अक्सर मुझसे लोग कहते हैं so we recently registered Skillistan as a company now. Now we are in the status of doing MOUs and all. But even before मतलब लोगों ने organizations register भी नहीं किए होते. They do MOUs just for the sake of pictures, right? But then there is no work. So people usually ask me, why are you not into MOUs? I'm like, ठीक है, हो जाएंगी MOUs भी. But for me, direct collaboration partnership works even without an MOU. For me, a word of mouth is important, right? So, but yes, we need to encourage effective partnerships. And 17.18, जिसका हम कल से रोना रो रहे हैं, and across these SDGs जो आपके साथ कवर किए हैं सब एक्सपर्ट्स ने, आपको एक डाटा गैप नजर आया होगा, स्पेशली फॉर पाकिस्तान. कि पाकिस्तान का जिस तरह हम कल एक इंडिकेटर का देख रहे थे, तो डाटा नहीं था. जो वो 12 मंथ्स प्रीवियस डाटा मांग रहे थे वो तो बिल्कुल आप भूल जाए ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो 12 मंथ्स में PSLM सर्विस
are the most important data mechanism of our government, PSLM सर्वेज। और PSLM सर्वेज जो हैं वो every 2 years आती हैं। और I shared it yesterday too कि मैं एक डाटा का इंतजार कर रहा था, वो PSLM सर्वे ही था। और वो मुझे जो चाहिए था, आई रिमेम्बर 2020 वाला चाहिए था, जो 2022 में भी नहीं रिलीज हो रहा था। रिसर्च पे पुराना सर्वे हो चुका है, डाटा है, मुझे पता है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास था उस टाइम, बट दे वर नॉट रिलीजिंग इट। इट टुक 2 more years टू रिलीज द डाटा। सो ये हाल है हमारा डाटा अवेलेबिलिटी का। और अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो, क्योंकि मैं तो PSLM सर्वे के अंदर फिर रिसर्च कर रहा था, तो डेफिनेटली मुझे तो डाटा डिस्क्रिपेंसीज पता चलती है ना, फिर जब बंदा इन डिटेल किसी और का रिसर्च या सर्वे देख रहा होता है। तो मुझे समझ आ गई कि बलूचिस्तान के बहुत सारे जिलों में कोई अच्छा सर्वे इन्होंने किया ही नहीं है, बस एमी खुद से ही फिल किए हैं एन्यूमरेटर्स ने। और दिस इज सरकारी डाटा नाउ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो देयर इज अ ह्यूज डाटा गैप। इवन इसमें जो हमारे बजट में हमने SDGs के लिए क्या क्या एलोकेट किया है, कितना, या क्लाइमेट में भी इसका जिक्र है कि किस चीज पे कितना बजट गया है। हमारे गवर्नमेंट, उस दिन मैं कॉन्फ्रेंस में था, बेसिकली द वन ऑफ NDRMF का ही कोई था, वो कह रहा था कि जब हमारे पास पीछे से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बजटिंग ठीक आ ही नहीं रही है, तो हम लोग आगे कैसे डाटा शो करें कि हम क्लाइमेट में कितना पैसा लगा रहे हैं। So these are the realities of data in Pakistan, but there is a target which can help us, that is 17.18. And last but not the least, further develop measurements of progress. So within this whole kahani of SDGs जो हमने अभी तक cover की है, you see there are the goals and there are the targets जिनको आप सब goals समझ सकते हैं। And then there are the indicators जिनको आप measurement tool समझ सकते हैं। इस SDGs में उसके लिए रूम छोड़ा हुआ है। जैसे कल भी मैंने एक इंडिकेटर आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये बाद में आया था, 16.3.3 था शायद। So we still have the room to develop further measurements of progress। अगर कोई इंडिकेटर किसी टारगेट के लिए बना हुआ है but it's not effective, या उसका डाटा दुनिया में मुश्किल है मिलना, so it can be changed। This target gives us the room for changing such indicators। So basically, the 19 targets, we briefly discussed them. I know there is a lot more depth to them. The 25 indicators we couldn't cover in today's session, but yes, there would be an opportunity in the future maybe जो हम इन पे भी बात कर सकते हैं। But now I just want to put the ball in your court once again। क्यों हमें चाहिए मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स फॉर द SDGs? ये तो मतलब एक बंदा ये कह सकता है कि हमारी हुकूमत अगर चाहे तो ऑन देयर ओन भी वो ये SDGs के लिए काम कर सकती हैं, तो क्या जरूरत है प्राइवेट सेक्टर को मिलाने की? ऐसा है, यानी प्राइवेट सेक्टर भी इम्पोर्टेंट है। कौन इसमें बोलना चाहेगा? आई थिंक सब कह रहे हैं कि पार्टनरशिप्स की कोई जरूरत नहीं है, हुकूमत अकेला कर सकती है। अच्छा, बुशरा और सिद्रा दोनों ने हैंड रेस किए हैं, तो सिद्रा आप पहले बोल रहे हैं। सर मल्टी स्टेक होल्डर्स में पार्टनरशिप इसलिए मतलब पार्टनरशिप गवर्नमेंट और मल्टी स्टेक होल्डर्स में इसलिए ज़रूरी है कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़, दोनों के देखने के नज़रियात डिफरेंट है। जब दोनों के नज़रियात डिफरेंट है तो दोनों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होने की वजह से डिफरेंट चीज़ें, जब एक चीज़ में अमलगम क्रिएट होता है तो वो एक बेटर वर्जन क्रिएट होता है। कि मतलब कुछ आप इधर से लें, कुछ इधर से लें और उनको एक नए मॉडिफाइड वे में या रिफॉर्म वे में किसी चीज़ को करें। Indeed, so true, Sidra. Thank you so much. The private sector has their own,
plus points, and the public sector has their own. Sair is saying, I think it's important for the economy. Shireen is saying everything is so connected. Our private sector is quite well connected. In fact, very rich too. We need to get all hands on deck if we want to advance in any ways. So true. अच्छा, जब हम मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स की बात करते हैं ना, तो हम तो सिर्फ कह देते हैं ना पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, बट द मल्टी स्टेक होल्डर, राइट, सारे स्टेक होल्डर. सो सारे स्टेक होल्डर्स को अगर आप मैप करें ना फॉर द एसडीजीज, तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इज अस, इज द यूथ दैट इज इन पाकिस्तान, राइट. सो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अस, कि हमारी हुकूमत आए और हमसे भी पूछे कि आप यूथ इतने सारे वर्कशॉप्स कर रहे हैं एसडीजीज पे, why not let's work collectively to make some knowledge for the SDGs, to maybe empower other youth for the SDGs. But sadly, although मेरा एक interaction हुआ था with the federal SDG support unit, but it's not so effective, not so efficient. That is why there are no multi-stakeholder partnerships. Let's go to Bushra. Yes, Bushra. जी सर, आपके पॉइंट से इत्तेफाक करते हुए कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी. लाइक देखें, जब दो कैलेंडर डाइवर्स ग्रुप्स की आपस में कोलैबोरेशन हो जाएगी या कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उनको एक तो सबसे पहले एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, इसको हम ना ये हम मल्टी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट को कह लें, या इस चीज़ को ना एक और नाम भी दे सकते हैं. वो क्या उसे कहते हैं जो मर्ज करते हैं हम कंपनीज को. वो तो देखें ना, वो डिफरेंट कंपनीज होती हैं. जैसे हम इसकी एग्जांपल वहाँ से उठा सकते हैं मेरे ख्याल से. लाइक देखें, उसमें होता है कि एक जो है वो वर्टिकल होती है उसमें, एक जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है. इन हॉरिजॉन्टल मर्जर और वर्टिकल मर्जर बेसिकली, तो वो क्या कहते हैं उसमें, जो हॉरिजॉन्टल होती है वो होती है सेम स्केल पे जो काम कर रहे होते हैं. जो वर्टिकल होते हैं वो एक अपर लेवल पे होता है, एक लोअर पे होता है. फॉर एग्जांपल कह लें, अगर ARY ने दुनिया न्यूज़ के साथ कह लें कि कोलैबोरेशन कर ली, तो वो ऑलमोस्ट कह लें सेम पॉइंट पे हैं. ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल में आ गए. दोनों में अगर कोलैबोरेशन हो जाती है तो कुछ फ़वाइद उनको ये हो सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में उन्हें फ़ायदा हो सकता है, और लाइक मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ आएंगे उनकी, कह लें रैंकिंग बढ़ सकती है. मोर ओवर जहाँ बात कर रही थी वर्टिकल की, उसमें ये आ जाता होता है कि लाइक अगर एक अपर लेवल की होती है और एक लोअर की होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ना वो कह लें फॉर एग्जांपल एक जो है वो मैन्युफैक्चरर है और एक जो है वो प्रॉपर लाइक वो रेडीमेड चीज़ें वो प्रॉपर उस तरह बनाते हैं. ठीक है, तो एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है. तो जब वो आपस में मिलते हैं तो उनमें तो बहुत ज़्यादा उसमें उन्हें कह लें कि रिसोर्सेज उनके बढ़ जाते हैं. ठीक है, उसमें उनकी तो यही चीज़ सारी यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है कि अगर हम मल्टी स्टेक होल्डर्स की बात करें, तो जैसा कि आपने कहा कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स इसमें आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें एक्सपर्टीज़ भी बढ़ जाएंगी, उनका नेटवर्क बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, उनकी डिसीजन मेकिंग और कह लें इंक्लूसिव हो सकती है, उनकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी. उनकी जब एक कह लें कि कलेक्टिवली ऑनरशिप उनकी होगी, तो वो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है उसका उनकी इकोनॉमी पे, इनोवेशन में इसमें बड़ा फ़ायदा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें जो लाइक आई थिंक सो ऐड करूँगी. इसमें चैलेंजेस ऑब्वियसली इसमें चैलेंजेस भी हैं, लेकिन जो है ना इसमें फ़वाइद भी काफ़ी हैं. Thank you, Bushra. So you were basically talking about vertical forward and vertical backward. So yes, you have explained it well. And business concept एक larger cost पे भी आपने apply किया. But yes, collaboration में और competition में फर्क है, right? The business world is mostly competing. The NGO world is also competing. I mean, the grants and all वो scarce होती है. ठीक है, मतलब 100 रुपए हैं और बहुत सारे NGOs हैं, सबको पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, they are competing. एक दूसरे की टांगे भी खींचते हैं, एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स भी खराब करते हैं. So much is going on. I recently, last month I was in China, and
as a delegate of the World Youth Development Forum. उधर मैंने एक नया लफ्ज सीखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा चाइना में. So the new word that I learned was cooperation, means collaboration और competition का मिलाप. कि we are not saying कि competition मत करो, business world competition जरूर करेगा, but then do cooperation. In some ways you need to collaborate. For example, Jazz or Zong, they are competitors, but maybe for some CSR project, maybe for youth empowerment, maybe हमारे ELCOIS में दोनों partner आ जाएं and so on, so they can collaborate as well. So things like these should be considered by these high ups in power positions, चाहे वो private sector में, चाहे वो public sector में, and so on. So we cannot achieve progress in SDGs without multi-stakeholder partnership. That is why it's important. It's बिल्कुल ऐसे ही है. SDGs seem impossible without SDG 17. So the complexity of the challenges faced by the SDGs basically force us to collaborate. 17 में ये बातें इसलिए करनी अच्छी लग रही हैं because you have been through all of these goals. आपको सारे challenges नजर आ गए. कल के SDG 16 में हमने कितने challenges देखे, right? When there are so many challenges, so we are forced to collaborate, otherwise we cannot do it. The second is जो आपका point था कि the need for diverse expertise, resources and perspectives to tackle these challenges effectively. Private sector का एक अलग perspective है, civil society organizations, CSOs, उनका एक अलग perspective है, youth led organizations, उनका एक अलग perspective है, and so on. All of these stakeholders, if they combine their expertise, their resources. अब हमारे पास क्या resource है? Youth mobilization power, for example. लेकिन हमारे पास फिर financial resources इतने नहीं होते. So, you know, if such collaborations happen, they are definitely going to be more effective. Then last but not the least, whenever I do collaborations now, the impact is higher than doing something on my own. I have always noticed this. Even for this workshop, I would like to say कि जब दानियाल ने मुझे कहा कि सर you have to come for this workshop, I have a very busy schedule nowadays. अभी भी मेरी इसके बाद भी एक मीटिंग है 8 बजे. That's why I asked दानियाल कि आज मैं जरा जल्दी खत्म करूंगा. But again, the reason that I wanted to come in and give my time to all of you was because I know कि जब various speakers आएंगे, it's going to be more impactful, and I should definitely support this initiative by Burak. So now just to let you know, ये एक chart बनाया है NORRAG ने, and this is based on the actual linkages between different targets of different SDGs. तो इसमें आप जरा ये जो दरमियान की लाइनें हैं ना, these are basically the interlinkages between different SDGs. तो ये जो मकड़ी का जाला बना हुआ है आपके सामने, this is the depth of SDGs, and I hope all you have grasped since 1 to 17 कि इसमें 169 टारगेट्स हैं, 247 फिर उनके इंडिकेटर्स हैं. सो ये जो 169 टारगेट्स हैं ना, इनकी बेसिकली ये लाइंस बनी हुई हैं, एंड दे आर ऑल इंटरलिंक्ड. मतलब SDG 4 is the most interlinked with all of them. Then I would say 16 is very much linked. जैसे हम कल पीस की बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल में तो पीस हर सारे SDGs के साथ लिंक्ड है, but you can see the main direct linkages. Indirect linkages अलग हैं, but direct linkages in this complex web, this is the challenge, right? And this forces us to collaborate for these SDGs. I mean, for example, अगर हमने health sector को अच्छा करना है, तो we also need to teach them climate, right? For example, this is one of the area I am also working on along with a few other stakeholders कि हमारा जो health system है
उसको सस्टेनेबिलिटी का इतना अच्छा अंदाजा नहीं है मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में। And one of the reason is they have been kept away. They MBBS का अगर आप करिकुलम देखें तो, क्योंकि मेरे अपने दोनों पेरेंट्स प्रोफेसर्स हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, राइट, सो आई नो द होल करिकुलम। they don't know anything about the SDGs, climate को भी छोड़ दें, and so on. And same goes for all of our other areas and fields of study. Engineers को जो से फॉर एग्जांपल बहुत स्पेसिफिक सिविल इंजीनियर्स होंगे, उनको भी SDGs का इतना नहीं पता होगा. somehow they can link their work with climate and so on. So these are the interlinkages that we have to develop as stakeholders. Let's move to the next one in the interest of time. Yes, so basically we at Skillistan, we are always open to collaborations for the SDGs. And for me, it doesn't matter if you are a one-man show, if you have 10 people in your organization, if you have a small startup and so on. I always am up for collaborations. अच्छा, बहुत बार ऐसे होता है, मुझे अपनी टीम कहती है, सर आप क्यों इनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हमारा तो इतना फायदा नहीं है, इनका फायदा होगा and so on. I'm like, you know, it should be a win-win situation. I mean, collaborations, चाहे आपका win छोटा है या बड़ा है, it's going to create a win-win situations for you. And I always tell my mentees that always be open to collaborations. So you should also be open. Just to tell you quickly about what we do in Skillistan, एक तो हम capacity building workshops कर रहे हैं, right? Like this one. Then we are also doing collaborative initiatives with stakeholders for the SDGs, project-based काम and so on. Then event organization. So one of our biggest event that is upcoming, and all of you should basically apply for it. It's the National ELCOI. और अगर आप किसी provinces में हैं, so बहावलपुर का ELCOI is on 4th, उस पे apply करें, applications खुले हैं. AJK का first को है, applications बंद है, but if you are very much interested, you can contact me and आपका on the spot भी registration कर सकते हैं. GB का 3rd को expected है and बलूचिस्तान का 12th September को. So these are all the things that you can be part of, and this thing is very important. So basically when I was working, I was teaching the SDGs. I found out कि हमारे बहुत सारे businesses, NGOs, you know, they are clueless about the SDGs. They are actually contributing to the SDGs, but they are not reporting it well. So we also offer such services to startups, businesses. And one of our flagship project that we launched recently, uska to 8th ko is the closing ceremony. It's the SDG Impact Leaders Fellowship, 3 months fellowship hai, and the next one is going to be announced after 8th September. So where we started, ये story मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ so that all of you get maybe some inspiration from this story that we at Skillistan have created. वो ये कि last year हमने within ELCOI, so I was within the ELCOI organizing team, right, from the Movers program, but मुझे realize हुआ कि मेरा एक अपना platform भी होना चाहिए. And thanks to OMLA's fellowship too, Daniel is also a fellow this year. So we got the chance to have a project. And basically Skillistan was launched as a project last year. We partnered, we were among the main organizers of ELCOI. उधर ही हमने अपना main workshop, जो Mastering SDGs workshop है, वो launch किया. And again, we partnered with so many organizations. Just a year since this picture, ये 25th August की picture है, तो एक साल ही हुआ है कि हमने launch किया है in ELCOI. This was our very first workshop. Amar Jafri साहब भी आए थे, the one we talked about, right? He's from the SDG Academy. And since then, a lot of collaborations. I mean, we have done maybe more than 50 collaborations, direct collaborations. ऐसे consortiums में हमने और बहुत ज़्यादा काम किया है, where there are many organizations involved, right? And we've trained more than 5,000 workshop participants, definitely with the help of these collaborations. But we still need more, right?
And our biggest achievement was, again, हम अगस्त में launch हुए and November 2023 में we became the knowledge partners of COI18. आप में से जिनको climate space का पता है उनको पता होगा COI18 क्या चीज है, और जिनको नहीं पता, it's basically a precursor event to COPs, जो conference of party होती है COP28 दुबई में जो था, उससे कॉय पहले होगा। इस बार कॉप 29 है अजरबैजान का, तो कॉय 19 होगा, राइट? सो बेसिकली दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द कॉप एंड बट यूथ फोकस्ड, राइट? सो वी एज किलिस्तान बिकेम नॉलेज पार्टनर्स एंड you know, just to give you an example, yes, अगले पिक्चर में शायद है भी. So yes, this is our logo, but there were 170 partners for COI18. So it also gave me a lot of inspiration. You know, why was this COI so successful? And the answer was many partnerships, many effective partnerships. So everything that has good partnerships, it's going to end up well. So now again, the question to all of you, we are almost reaching the end. कि आपने ये नाम सुना होगा silos, right? So ये वो गंदम को रखने के लिए होते हैं, and the reason why they are separate, एक तो इतना बड़ा बना भी नहीं सकते कि सारे एक में डालें, but इसमें ये भी होता है कि खराब होने का भी चांस होता है. So anyways, you know, can we do collabs? So can we do collabs or should we be in silos? So will we continue to work in silos or will we come together as a global community to create a future where no one is left behind? So आप मुझे बताएं कि आपने इस सारी जर्नी में ये सीखा है कि silos में काम बनेगा या collabs में काम बनेगा? Okay, wait, let me check the chat box. पहले तो एल्कोइस की बात हो रही है. मुजना is saying, can Elkoi be joined online? Elkoi, okay, I had a short connect. I'm back. See you in Bahawalpur, Saira. And Sadia is saying collab is better. Zuneha, Leila, Aksa, Hifza, Sadia. Yes, we can use skills in collab. It is united. A lot of distortion. Okay, I guess अब सही हो गया होगा. But mainly कुछ इंटरनेट इशू है, दोबारा से आ गए. इसी टाइम कल भी हुआ था. अच्छा, same time था. So silos can be good, but for short term, but collaboration is for the long term periods. Agreed, Saira. Maham is also saying collaborations. So that's the way forward. And just to go to the end, just a small interactive activity. इतना बहुत आप सबको पता चल भी गया, right? Why is SDG 17 the most important goal? जब मैं कहता हूँ मेरा favorite goal है, तो it's definitely because I consider it the most important goal. And what can we do for SDG 17 in our life ahead? So do think about these things, right? And you know, you can always do so much in your life ahead. आपका कोई छोटा सा ही initiative हो, right? You can collab with someone else and it can be made more effective. You can maybe try to build a collab between two other persons. आपका कोई मतलब direct interest नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया कि अच्छा दानियाल को एक help चाहिए, जो मेरा एक दूसरा दोस्त है, उसके साथ अगर मैं दानियाल को लिंक कर दूं तो इसका काम हो जाएगा. So this is how, you know, we can at an individual level too do something for SDG 17. So anyone who would like to quickly add on to this,
then we are just going to the end. I mean, I just kept this interactive activity if someone wants to add something to it. Yes, Bushra. जी सर, इसमें जो है आपने कहा कि टाइम भी कम है तो उसी हिसाब से ऐड करना है ऑब्वियसली। तो इसमें लाइक लिंक्स की बात तो आपने ऑलरेडी कर दी, ठीक है, और हमने रिसोर्सेज की भी कर ली, और ये सारी चीज़ें इस पे जो है वो होती हैं शामिल। लेकिन अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें जो कि इसकी इम्पोर्टेंस बताएगा, तो ऑब्वियसली ये जो है SDGs के साथ ही रिलेट करता है। अगर कह लें पार्टनरशिप्स होंगी, हम तभी इनिशिएटिव्स ले सकेंगे। इवन छोटा सा भी इनिशिएटिव लेना है तो अकेला बंदा जो है वो मुश्किल से लेता है, मिलके लें तो वो जल्दी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम पोवर्टी के लिए लेते हैं तो हम SDG नंबर 1 को कह लें अचीव कर सकते हैं। सेम एज फॉर SDG 4 कह लें हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन होती है उसमें भी अगर हम कोलैबोरेशन के साथ लोगों को कह लें कि एजुकेट करेंगे, हम अपना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा बना लेंगे तो ऑब्वियसली लोगों को सीखने में भी मज़ा आएगा, जैसे हमें ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया गया, ना कि हमें अकेले अकेले ये सब पढ़ाया गया, राइट। और अगर इसी तरह से जैसा मैंने पहले बोला कि इनिशिएटिव लेने के लिए, तो इनिशिएटिव सब में ले रहे हैं, इवन क्लाइमेट चेंज में अगर लेना है फिर भी हमें इवन ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती है। तो इंडस्ट्री में तो इसका बहुत ज़्यादा हाथ है, बिजनेस में कह लें। और मोर ओवर जो मेरी फेवरेट है SDG 6 है, तो ऑब्वियसली उसमें भी हमने अगर सैनिटेशन या मैनेजमेंट सर्विसेज को बेटर करना है तो उसके लिए हमें पार्टनरशिप्स वगैरह करनी पड़ेंगी। दैट्स इस वजह से मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है। Thank you, Bushra. Everywhere, every goal that we see, not just SDG 6, SDG 5, सबको within the goal भी अगर आप देखें जो जो stakeholders काम कर रहे हैं ना, अगर वो आपस में सिर्फ collaborate करना शुरू कर लें, it can make life easier for all of them. But again, there is so much competition even in the development sector, because I observe people now, they don't even want to वर्क विद समवन एल्स के भाई इसको फायदा होगा, इसकी ब्रांडिंग होगी, अगला शायद ग्रांट भी इसी को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, एंड सो ऑन. So again, we should think above and beyond these minor things. So let's move forward again in the interest of time. मेरी next meeting है. So this is again kind of a homework for all of you. No one is going to check it. No one is going to ask. ये आपका अपने लिए है, right? Write 3 things that you will do for SDG 17. Maybe you can say कि मैं अब ये करूंगा कि क्योंकि आज हमने इंडिकेटर्स नहीं कवर किए, I'll read about these indicators. इसमें है क्या? The second thing you can write maybe कि मैं 1-2 दोस्तों को भी SDGs का बता दूंगा, 10 दोस्तों को बंदा बता सकता है, so that they also take interest, they also learn, they also contribute. And maybe you can also write कि मैं खुद एक स्टार्टअप बनाऊंगा या एक प्रोजेक्ट बनाऊंगी, and then I'll collaborate with someone just across LinkedIn. I'll see के कोई इसमें मेरी हेल्प कर सकता है, ना I'll ask for help. पता है हेल्प मांगने में कोई कुछ बुरा नहीं है. Many people like being asked for help, so do ask for help. ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलेगी, so पैसे तो नहीं खर्च हो रहे आप पे, so do ask for help. And then again, yes, if you are interested in the Skillistan Fellowship, it's going to be launched. Next जो batch है हमारा 8th को आ रहा है. Maybe you can recommend it to someone who you think is already quite good in the SDGs and they can shine on this platform. So don't miss the next batch if you're interested. And if you want to join our volunteers community anytime, up LinkedIn page, you can find our volunteer form on our Skillistan page. 3 dots, click करें. You can also master these skills. Many other programs are coming. Volunteers का जो हमारा program है, that's it's very comprehensive. Many more things are going to happen, and you can then train others through our volunteering platform. So that would be all from me. Thank you so much for your time. Feel free to connect with me on LinkedIn if you are not yet, and let's collaborate for the SDGs. And once again, this is my favorite goal, the 17th one. Unfortunately, अगर बहुत ज़्यादा time होता तो और भी इस पे discussion करते, we could have covered the indicators in depth too. But yes, looking forward to maybe seeing all of you again. कोई भी questions हो, concerns हो,
अगर अभी टाइम नहीं मिला आपको, although I gave you a lot of time to ask, but you can always drop a message to me on LinkedIn. So with that, yes, thank you so much. Over to you, Daniel. Thank you so much, Shersha bhai, और really due to this whole workshop series, मैं ये बिलीव करता हूँ कि at the end जो partnership of the goals है, our fellows will be collaborating with each other. Along with this, we will be collaborating in future. So thank you so much everyone. और मजीद मैं ये बिलीव करता हूँ कि शेरशाह भाई के साथ आप सारे कोलैबोरेट करोगे उनके इनिशिएटिव्स के अंदर. लेट्स work together for a better community and for a better societal impact. So once again, thank you so much, शेरशाह भाई, कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला. इट रियली मीन्स अ लॉट. और मैं यही पर्सनली समझता हूँ कि किस तरीके से आपको बिजी स्केड्यूल है, एल्पाई की मीटिंग्स वगैरह और सब कुछ. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी फेलो पार्टिसिपेंट जो इन 17 डेज के अंदर इन 17 एसडीजीज को सीखने के लिए इतने ज्यादा पुरजोश थे. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट project and looking forward to seeing you all. Thank you so much, Shirsha bhai, and thank you so much, everyone. Thank you so much. अच्छा, कोई मेरा LinkedIn लिंक मांग रहा है. I don't have. Wait, I do have access to it. Let me share it. Maybe बाद में आपको फिर ना मिले. Yes, I just found it. Yes, you can always connect with me on LinkedIn. Make sure to send me a connect request. अच्छा, follow सामने follow होगा, follow नहीं आपने करना, आपने वो 3 dots click करने हैं और connect request send करना है. Yes, and thanks again to all of you. Thanks to Daniel and the Borak team for inviting me, and all the Zabardast participants who actually interacted. पता है interactive learning से जो आपके फेलोज हैं ना, उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है. दोज हु डिडंट टॉक, मैं आपको एक बात बताऊं, ऑलवेज ट्राई टू टॉक. आपसे लीडर ही तब बनेगा जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे. जब आप बोलेंगे ही नहीं तो कैसे प्रैक्टिस होगी पब्लिक स्पीकिंग की, राइट? एंड आई अच्छा जवेरिया, यू कैन ज्वाइन एल्कोय बहावलपुर. एल्कोय के पेज पे जाएं, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी भी खुला हुआ है. Do apply as soon as possible. And thanks for the collaboration offer, Bushra. We'll definitely do something great. Okay. So with that, thank you so much, everyone. See you all again. Bye bye. Thank you so much, Shirsha bhai. Thank you so much once again, and Khuda Hafiz. See you soon in El Koi Bahawalpur. Inshallah. Inshallah. So thank you so much to all the participants. I really hope कि आप सबने सीखा हो, और जो 17 days की 17 workshops थी, I'm really hoping कि इनमें से आपका कोई एक फेवरेट एसटीजी अभी तक बन चुका हो, और उसके ऊपर आप लोगों ने अपना एक तरीके से प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट आइडिया इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया हो. I'm really looking forward to your projects. Meanwhile, the floor या the platform of Burak will always be provided to you. अगर आप ये अपनी वेबिनार सीरीज लॉन्च करना चाह रहे हैं, बेशक आप कोलैबोरेट कर लो आपस में एक दूसरे के साथ. Because I really believe कि आप सबके पास वो potential है. You all can be the speakers, you all can be the knowledge partners, the knowledge builders, जो आगे जाके पाकिस्तान को एसडीजीज के जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके अंदर हमारी जो पोजीशन है उसे सही कर सके. एज पाकिस्तान के अंदर रफली 1% पॉपुलेशन नोज के एसडीजीज क्या होता है. और इन 17 वर्कशॉप्स को, इसकी सीरीज को खत्म करने के लिए जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, आई थिंक सो आई विल बी कॉलिंग Mr. Rana Muhammad Abdullah. He is the president of the Burak Association. Abdullah bhai, if you are there, just please open your mic and then give us your concluding remarks.
अरे अब्दुल्ला भाई, यू आर नॉट ऑडिबल। आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही। अच्छा, आई गेस मेरे फोन में कोई इशू है। दानियाल, एम आई ऑडिबल नाउ? यस, यू आर सर्टेनली ऑडिबल। बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। सॉरी, आई गेस मेरे फ़ोन पे कोई इंटरनेट इशू आ रहा है, तो इसलिए मैंने मिनहाल की आईडी से लॉगिन किया। So, thanks a lot everyone for taking out this much time and putting in these much efforts to learn about SDGs. As mentioned earlier by Mr. Shersha and Danial Kamal, we are open to having you on board in any of your future projects. आपको बुराक से जिस भी मद में हेल्प चाहिए हो, feel free to reach us out. Either Danial, either me or Maimuna, जिसको भी आप reach out करना चाहें. Additionally, we'll be launching our course on international governance as well soon, and we have a surprise that Danial is planning from a lot of time now, as United Nations is going to launch another SDG, and we are looking forward to engage you all in an engaging session for that upcoming SDG जो कि United Nations जल्दी launch करने वाला है. So I'm looking forward to having you all in the upcoming sessions, in the upcoming cohorts, in the upcoming fellowships, and in the upcoming projects that will be launched by us. और it was a great pleasure having you all on board. अगर पास्ट में कभी कोई स्पीकर का कहीं पे भी डिस्कनेक्शन आया हो, हमारी टीम की तरफ से कुछ भी आप लोगों को प्रोवाइड करने में डिले आया हो, तो काइंडली डू यू नो डू लेट अस गो फॉर दैट। उसको आप लोगों ने दिल पे नहीं लेना। एडिशनली फॉर ऑल दोस्त जिनसे एक दो सेशंस मिस आउट हो गए हैं, विल बी शेयरिंग द लिंक टू ऑल ऑफ द रिकॉर्डेड सेशंस इन अ डे और टू, ठीक है। और आप सबके सर्टिफिकेट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू विद इन 2 to 3 days इंशाल्लाह। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, और आप सबके ट्रस्ट का, आप सबके वक्त का और आप सबके एफर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। With that being said, I'll not be taking much of your time now, but yes, I'm looking forward to having you in the upcoming cohorts as well. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और आई गेस वी शुड बी कंक्लूडिंग दिस सेशन विद दिस। एडिशनली I guess that is all, Daniel, from my side. Over to you. Take care, guys. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, और थैंक यू सो मच एवरीवन। सो जिस तरीके से अब्दुल्ला भाई भी कह रहे थे और शेरशाह भाई भी कह रहे थे, वी विल बी ओपन टू कोलैबोरेशंस। आई वुड रियली लाइक टू हैव यू ऑल बोर्ड विद अस, सबके सब। और ये नहीं है कि मैं यहाँ बुराक एसोसिएशन, हमारी जो पूरी टीम है वो आप में से सिर्फ 10 को ले, 10 को ले या 20 को ले, बल्कि आप लोग जितने भी हो, बेशक वो 100 हो या बेशक वो 200 हो, वी वुड ऑल लव टू हैव यू विद अस। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। आई वुड रियली लाइक टू हैव यू ऑल इन दोज प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जिनके मैं आप लोगों को लेना चाहूँगा और आपके साथ में वो प्रोजेक्ट करना चाहूँगा। और ताकि वो जो प्रोजेक्ट है वो एक तो इम्पैक्ट अच्छा जाए, क्योंकि मेरा एट द एंड ये मानना होता है कि जो भी हम लोग प्रोजेक्ट करें उसका एक बेटर सोसाइटल इम्पैक्ट हो, बेटर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो। लेकिन आई रियली गो फॉर अ सोसाइटल चेंज, जिसके अंदर हमारा जो बेसिक मेरा कंसर्न होता है, बेसिक मेरा एम होता है, वो होता है कि ह्यूमन बिहेवियर के अंदर मैं चेंज ना हो, ह्यूमन लाइफ स्टाइल के अंदर मैं चेंज ना हो, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हो गए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग 17 SDGs में हमारे साथ बने रहे। और मैं आज के ही दिन जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का कोर्स है उसका डेट और टाइम अनाउंस कर दूंगा आपको ग्रुप्स के अंदर। आपके पास वो आइडिया आ जाएगा, और इसके मुताबिक अपनी जो आप कह रहे हो ना स्केड्यूल, उसको आप बना लीजिएगा। और मजीद ये कि जो आपकी वीडियोस जो भी वॉलंटियर कर रहे थे, प्लीज सेंड अस, ताकि हम लोग उसको मजीद देख लें। और इट रियली मीन्स अ लॉट कि आप लोग एंड तक बने रहें। वेल, प्लांटेशन के लिए असद, जो आपकी क्वेरी होगी आप प्लीज अब्दुल्ला भाई से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ही विल बी क्लियरिंग योर क्वेरी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टेइंग टिल नाउ। अब इसको रैप अप करते हैं, एज वी आर about to end our 17 workshops on the 17 sustainable development goals. Looking forward to seeing you all in the next course. Thank you so much, and Khuda Hafiz.